So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is for class 8th. So class, if you remember, in our last video we have completed lesson 8, which was a poem, that is Coromandel Fishers, right? So that particular poem we have completed, and I also told you to write the meaning, word meaning in your copy as well as in your book, and write down the question answer in your classwork copy, right? So today we are starting with lesson 9, which is the last chapter of term 1 syllabus of English literature, right? So we are starting with lesson 9, that is uh, Jamaican fragment, right? So let's see what the story is all about, and let complete the story, right? By reading and understanding the content of the story. So let's proceed for the class. So lesson 9, Jamaican fragment, right? Term 1, class 8th. Let's proceed for the class. So Jamaican fragment, right? This is lesson 9, which is the last lesson that we are covering up, or we are going to complete of term 1. So Jamaican fragment. Jamaican means people of Jamaica, right? So Jamaican is like we Indian are known as, or we live in India, that's why we are known as Indian, right? So same as the people of Jamaica are known as Jamaican. And fragment means passage or story, the leftover passage of story. That means this is the story, or this particular story uh, is related to a person of Jamaica, right? So let's proceed further. Jamaican Fragment is a short story about a Jamaican man who witnessed two young boys, right? So this particular story is a short story, right, about a Jamaican man. So this story is about a man who was living in, or who was from Jamaica, right? Who witnesses two young boys. Witnesses means seen or had seen, right? जिसने दो बच्चों को देखा. A white boy ordering a black boy while playing the game of boss, right? So there was a two young boys. One was a white boy, that means a foreigner, and the second one was black boy. Black boy means the people, especially you know that black people are known as people who live in West Indies or in Jamaica, right? So it is nearby South America, right? A continent. So while playing a game of boss, now they were playing a game that was which that name was boss. Does it signify racial discrimination, or is it just a game? Now the author is asking कि the game boss which they were playing, the two young boys, they were playing the game of a boss, right? So signify means it describe racial discrimination. Racial discrimination means caste or religion distinction, right? When people respect you, or they don't respect you, they really care for you, or they don't care for you on the basis of caste or religion, right? It happens. So, or it is just a game, or it was just a game that person saw when these two young boys were playing, right? So we will be only it will be only understandable to us when we read the story. So let's proceed with the story, class. Every day I walk a half mile from my home to the tramcar lines in the morning, and from the lines to my home in the evening, right? So now the author is saying कि every day I walk half mile, मैं half mile चल के जाता था. कहाँ से? मेरे घर से to the tramcar lines. Tramcar lines means railway lines, right? In the morning में ये tramcar line से होते हुए अपने घर से आधे मील के दूरी पर जाता था, और फिर उसी लाइन से होते हुए, मतलब उसी ट्रैक से होते हुए अपने घर के लिए शाम को लौट आता था. द वॉक इज़ प्लेजेंट मीन्स इन्जॉयबल, और उसके लिए ये जो जर्नी थी, जो वॉकिंग था, वो बड़ा इन्जॉयबल, मतलब इट वॉज ही यूज टू फील वेरी हैप्पी वाइल और when he walks. The road on either side is flanked by red and green roofed bungalows, green lawns and gardens, right? So जो रोड थी
दोनों साइड की जो रोड थी वो फ्लैंक्ड बाय रेड एंड ग्रीन रूफ्ड बंगलोज, ठीक है। फ्लैंक्ड मीन्स सराउंडेड। तो जो जिस रोड पे वो चलता था, मतलब जिस रोड से वो आता था, उसके दोनों तरफ के जो 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 दोनों तरफ की जो लाइक साइड थे, वो रूफ वाले बंगलों से, रेड कलर के ग्रीन कलर के बंगलों से मतलब बने हुए थे। और वहाँ पे ग्रीन लॉन एंड गार्डन भी थे, ठीक है। और बंगलों के बाहर लॉन जैसी जगह भी थी, मतलब थोड़ी गार्डन एरिया वाली जगह भी उस बंगलोज में थी। द एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर मी एंड नाउ एंड देन आई लर्न समथिंग फ्रॉम अ लिटिल इंसिडेंट, राइट। सो जो एक्सरसाइज ये मतलब जो वॉक ये लेता था, ठीक है, चलने जो ये चल के जाता था पहले मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में लौटते हुए, तो वह एक तरफ की वॉकिंग, एक तरीके से ये वॉकिंग एक्सरसाइज थी इस पर्सन के लिए, ठीक है। एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम अ लिटिल इंसिडेंट, और ये कहता है कि एक इंसिडेंट से इसने बहुत कुछ सीखा या थोड़ी सी इसको सीख मिली। सो इंसिडेंट मीन्स समथिंग हैपनिंग, राइट। One morning, about halfway between my front gate and the tram track, I noticed two little boys playing in the garden of one of the more modest cottages. सो एक सुबह जब ये निकलता है अपनी वॉक के लिए, ठीक है, अबाउट हाफ वे बिटवीन माई फ्रंट गेट एंड ट्राम ट्रैक, मतलब ये अपने फ्रंट गेट और ट्राम ट्रैक के बीच में थोड़ी सी दूरी इसने तय की थी कि इसने नोटिस किया दो बच्चों को, ठीक है, जो कि गार्डन में खेल रहे थे, ऑफ वन ऑफ द मोर मॉडेस्ट कॉटेजेस, और एकदम स्मॉल कॉटेजेस, मतलब जो कि ये स्मॉल कॉटेजेस में, मतलब रूम में या बिल्डिंग्स तो नहीं कह सकते हैं, बट रूम कह सकते हैं इसको, ठीक है, या बंगलोज जो अभी डिस्कस हुआ है, ठीक है, प्रीवियस पैराग्राफ में। तो ऐसे छोटे छोटे बंगलोज में या कॉटेजेस में वो दोनों बच्चे वो दोनों बच्चे खेल रहे थे उसी कॉटेज के एक गार्डन में, कॉटेजेस के एक गार्डन में। दे बोथ वर वेरी यंग, वन वॉज 4 years old perhaps and the other 5, राइट। सो उसके हिसाब से वो बोलता है कि वो दोनों बच्चे बहुत यंग थे, ठीक है, और एक लगभग 4 साल का था और दूसरा 5 साल का। द एल्डर ऑफ द टू was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes, right। सो जो एल्डर ऑफ द टू, मतलब उनमें से जो बड़ा था, बड़ा कितने साल का था, 5 साल का, तो जो बड़ा वाला था वो स्टर्डी यंगस्टर था। स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा हट्टा कट्टा था। वेरी डार्क, और बहुत काला भी था। विद अ मैट ऑफ कोर्स हेयर, और थोड़े रफली हेयर उसके सर में थे। आपने कभी maybe in Allahabad or maybe somewhere out of Allahabad, you might have seen the people of West Indies or people of African, right? So you might have noticed their hair, the pattern of hair that they keep or that they have on their head, वो कितना रफ होता है और अजीब सा उनका बाल भी होता है। तो उसी तरीके से इस लड़के के भी बाल थे उसके सर पे, ऑन हिज हेड, एंड कोल ब्लैक आइज, और उसकी आंखें भी एकदम काली थी, क्योंकि वो खुद ही एक ब्लैक बॉय था, मतलब एक अफ्रीकन या जमाइकन था। ही वॉज डेफिनेटली अ लिटिल जमाइकन। और फिर आगे ये ऑथर बोलता है कि जो 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 पर्सन इन दोनों को नोटिस कर रहा है या कर रहा था, वो बोलता है कि जो जो ये बच्चा था 5 साल वाला, ठीक है, वो जमाइकन था। अ स्ट्रॉन्ग लिटिल जमाइकन। नाउ ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय एंड अ लिटिल, ही वॉज अ लिटिल बॉय, एंड फ्रॉम वेयर he was a person from Jamaica. The other little fellow was younger but also sturdy. और जो दूसरा बच्चा था जो 4 साल का था, वो भी यंग था और वो भी हट्टा कट्टा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। बट ही वॉज वाइट, राइट। पर वो कैसा था, वो वाइट था। वाइट मीन्स लाइक जैसे फॉरेनर्स होते हैं, दूसरे फॉरेनर्स मीन पीपल फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम इंग्लैंड, राइट। विद हेजल आइज एंड लाइट ब्राउन हेयर, राइट। विद हेजल मीन्स रेडिश ब्राउन। सो उसकी जो आंखें थी वो रेडिश ब्राउन थी और लाइट ब्राउन हेयर था, ठीक है, ब्राउनिश हेयर, लाइक यू माइट हैव सीन द अमेरिकन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन पीपल, ठीक, द वे दे हैव देयर स्किन, द वे दे हैव देयर हेयर एंड ऑल दैट, राइट। So both were dressed in shirt and half pants. They wore no shoes, right? So they were dressed in shirts, that these two young boys were wearing a shirt and half pants, and they were having no shoes in their feet, right? So let's proceed for the class.
They went, they were not conscious of my standing there watching them, right? So conscious means aware. उनको पता नहीं था कि कोई उन दोनों बच्चों को नोटिस कर रहा है. Like you can see in the picture कि these two boys are playing and that person is standing behind them, ठीक है, behind the fence, and that person is watching, right, watching these two younger children. They were not conscious of my standing there watching them. They played on, ठीक है, और वो खेलते चले गए. The game, if it could be called a game, was not elaborate, ठीक है. अब ये कहता है, आगे ऑथर कहता है कि अगर मैं गेम की बात करूं कि वो गेम खेल रहे थे तो मैं उसको गेम नहीं मान सकता. एलाबरेट मीन्स इन डिटेल्स, मतलब अगर मैं कहूं कि वो दोनों गेम खेल रहे थे तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता क्योंकि वो दोनों गेम नहीं खेल रहे थे. बट इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ गेम, मीन्स इट वॉज अ काइंड ऑफ अ गेम, बट इट वॉज एग्जैक्टली नॉट अ गेम दैट दे वर प्लेइंग. The little white boy strode imperiously up and down, and every now and then shouted imperiously at his elder playmate. Right? The little white boy. Now, जो white boy था, वो लड़का जो था, strode means to walk, imperiously means arrogantly, right? Up and down, and every now and then. ठीक है. अब जो वाइट बॉय था, मतलब जो थोड़ा गोरा लड़का था उन दोनों में, वो क्या कर रहा था, वो चल रहा था, ठीक है, वो वॉक कर रहा था एरोगेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में या एरोगेंटली वे में या एरोगेंट वे में वो वॉक कर रहा था अप एंड डाउन, मतलब एक आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस तरीके से वो चल रहा था. एंड एवरी नाउ एंड देन शाउटेड, ठीक है, और हर मतलब हर दूसरे तीसरे सेकेंड या पहले दूसरे मिनट में वो क्या कर रहा था, शाउट कर रहा था. किसके ऊपर? अपने प्लेमेट में. प्लेमेट मीन्स द पर्सन द सेकेंड बॉय हु वॉज प्लेइंग विद हिम, द ब्लैक बॉय हु वॉज प्लेइंग विद हिम, राइट. सो इम्प्रेसली मीन्स अगेन एरोगेंटली और in an attitude, in a bad attitude you can say. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told, right. So the little boy, जो little boy था, जो दूसरा little बच्चा था, जो black boy था, वो shuffled along quietly behind him, वो उसके पीछे पीछे जैसे जैसे वो कह रहा था, मतलब ये white boy जो था, जो गोरा लड़का था, वो जैसे जैसे एरोगेंटली, मतलब एकदम डांटते हुए उस ब्लैक बॉय को कह रहा था, उस काले लड़के को, तो वैसे ही ये काला लड़का जो था, जो ब्लैक बॉय था, जो जमाइकन था, वो वैसे वैसे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े इंसान को फॉलो कर रहा है, डरते हुए एकदम. Pick up that stick. The dark boy picked it up. Jump into the flowers. The dark boy jumped. Now what was happening, or what that man who was standing behind them, he saw that the black boy was following all the instructions that were given arrogantly by that white boy, right. So white boy ने यहाँ पे कुछ instructions बोले, ठीक है, ऑर्डर किया उसको, वाइट बॉय ने कुछ ऑर्डर किया किसको, या इंस्ट्रक्शन दिया किसको, उस ब्लैक बॉय को, और वो ब्लैक बॉय मतलब वो काला लड़का वैसे ही कर रहा था, जो बड़ा था उन दोनों में. तो उसने वाइट बॉय ने क्या कहा कि पिक अप दैट स्टिक, मतलब वो डंडे को उठाओ. तो उसने वैसे किया, उस डंडे को उसने उठा लिया. फिर जंप इनटू द फ्लावर्स, उसने कहा कि इन फूलों के बीच में कूद जाओ, वो कूद गया. गेट मी सम वाटर, फिर उसने कहा कि जाके मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ. द डार्क बॉय रैन इनसाइड, और फिर वो घर के अंदर जाता है. द वाइट बॉय सैट डाउन ऑन द लॉन, और फिर वो लड़का जो है वो क्वाइटली, जो वाइट बॉय था, जो गोरा लड़का था, वो लॉन में बैठ जाता है. मतलब लॉन मीन्स द इन द गार्डन एरिया, वो गार्डन एरिया में बैठ जाता है. लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. आई वॉज अमेज्ड. Here before my eyes, a white boy, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy. I was amazed means I was surprised. Now the author, the person who was watching them, right, behind them or behind the fence, who was continuously having a watch on them, ठीक है, जो उन्हें देख रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे, क्या खेल रहे थे, किस तरीके का गेम खेल रहे थे, वो बहुत सरप्राइज़ हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हुआ ये देख के कि वो ये देखे कि कैसे वो एक जो वाइट बॉय था, मतलब जो गोरा लड़का था, वो कैसे ही फोर्सफुली सारी बात अपनी मनवा रहा था और काम करा रहा था, किससे? उस ब्लैक वाले लड़के से.
हेयर बिफोर माई आइज मीन्स इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मतलब मेरी आंखों के सामने अ वाइट बॉय, फॉर दे वर लिटिल मोर देन बेबीज़। तो मेरी आंखों के सामने जो एक छोटा बच्चा था, ठीक है, जो गोरा लड़का था, और मेरे हिसाब से वो दोनों मेरे लिए एक छोटे बच्चे थे, मतलब मेरे लिए क्या, मतलब वो दोनों एक छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। पर जो उसमें से एक लड़का वाइट वाइट बॉय था, जो गोरा लड़का था, वॉज इम्पोसिंग, मतलब फोर्सिंग, इम्पोसिंग का मतलब फोर्स करना किसी को, हिज विल, ठीक है। और विल मतलब वांट और विश, मतलब बार बार जो वाइट वाला लड़का था, जो गोरा लड़का था, वो फोर्स कर रहा था अपनी जो भी उसकी इच्छा थी, जो भी उसकी चाहत थी, उसको उसको एक्सप्रेस कर रहा था बाहर। और वही चीज़ करने के लिए बोल रहा था किसको, उस ब्लैक वाले लड़के को। मतलब अगर वो चाहता कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि जाके कि डंडे को उठाओ, फिर फ्लावर्स में कूद जाओ, उसके बाद उसने बोला कि जाके मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ। तो ये सब उसकी चाहत थी, या उसकी विश थी, या उसकी वांट थी। यहाँ पे विल का मतलब है वांट, उसकी वांट थी। और वो वही चीज़ करा रहा था किससे, फोर्सफुली किससे करा रहा था, उस ब्लैक वाले लड़के से। द लिटिल बॉय सबमिटेड, ठीक है, द लिटिल ब्लैक बॉय सबमिटेड, सबमिटेड मीन्स सरेंडर। अब पूरी तरीके से जो काला वाला लड़का था वो सरेंडर हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से सरेंडर का मतलब है कि पूरी तरीके से डिवोटेड था उस वाइट वाले लड़के के कहने को मानने के लिए। मतलब जो जो भी वो वाइट वाला लड़का कह रहा था, वो वो ब्लैक वाला लड़का वही वही कर रहा था, मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड था। आई वॉज puzzled as I went down the road. Could it be that the little dark boy was the son of? Right. So I was puzzled. वो कंफ्यूज हो गया था, जो आदमी इन दोनों के पीछे खड़े होकर उनको देख रहा था, वो बहुत कंफ्यूज था। एज आई वेंट डाउन द रोड, ठीक है, और जैसे वो आगे और बढ़ा उस रोड पे, या जैसे वो वहाँ पे रोड पे आके खड़ा हो गया था, उन उन दोनों बच्चों को देख रहा था, तो वो बहुत कंफ्यूज था। वो सोच में पड़ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक छोटा बच्चा है, ठीक है, दूसरे छोटे बच्चे को इतनी ब्लंटली और इतनी एरोगेंटली वो ऑर्डर दे रहा है। कुड इट बी दैट द लिटिल डार्क बॉय वॉज द सन ऑफ? तो कुड इट बी मतलब वो सोचता है, वो अपने मन में सोचता है, वो आदमी अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो लिटिल बॉय, जो काला लड़का है, छोटा जो काला लड़का है, वो वॉज द सन ऑफ, किसका बेटा है, लेट प्रोसीड फॉर द क्लास, वॉज द सन ऑफ सर्वेंट इन द होम, ठीक है। तो वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो काला लड़का है, जो कि बार बार कहना मान रहा है किसका, उस वाइट बॉय का, उस गोरे वाले लड़के का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काला लड़का है वो सर्वेंट का लड़का है, मतलब वो किसी नौकर का लड़का है, ठीक है। एंड देयरफॉर हैड टू डू द वाइट बॉयज़ बिडिंग, बिडिंग मीन्स कमांड, ठीक है, यहाँ पे बिडिंग का मतलब है कमांड। तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काला वाला लड़का है, जो जमाइकन लड़का है, वो किसी सर्वेंट का लड़का है, ठीक है, किसी नौकर का लड़का है, और इस वजह से वो वाइट वाले जो गोरे लड़के की सारी बातों को मान रहा है, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, या वो सर्वेंट का लड़का है, इस वजह से उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा काम जो भी उसको कहा जाए वो पोलाइटली और विदाउट कंप्लेनिंग वो सारे काम को करे। तो वो सोचने लगता है अपने दिमाग में, नो दे वर ऑब्वियसली ड्रेस्ड अलाइक, द लिटिल डार्क बॉय वॉज ऑफ इक्वल क्लास विद हिज प्लेमेट, राइट। पर वो जब देखता है, मतलब अब वो देख भी रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा था, तो वो उसके दिमाग में पहले ये तो आता है कि कहीं ये सर्वेंट का लड़का तो नहीं, वो काला वाला लड़का जिसकी वजह से वो इतना सारा कहना मान रहा है किसका, उस गोरे वाले लड़के का। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, पर उन दोनों में जो फिज़िकली उसको दिख रहा था, जो मतलब जो एकदम जो नेकेड आई से अपने वो देख रहा था, ठीक है, जो रियलिटी वो देख रहा था वो ये था कि दोनों का ड्रेस, उन दोनों बच्चों का ड्रेस भी सेम था, ठीक है। और जो डार्क बॉय था, ठीक है, जो काला वाला लड़का था, जिस पे वो वाइट वाला लड़का अपने विल को, अपने वांट को, अपने डिज़ायर को बड़ी एरोगेंटली से कह रहा था और उससे काम करवा रहा था, वो काला लड़का भी इक्वल क्लास का था उसके प्लेमेट से। मतलब जैसे जितना अमीर या जैसे भी, मतलब जिस स्टैंडर्ड का वो वाइट वाला लड़का था, उसी स्टैंडर्ड का वो काला वाला लड़का भी दिख रहा था। तो उसके दिमाग में ये आया कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों के ड्रेस भी सेम है, उन दोनों के क्लास भी सेम है, ठीक है।
और उन दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे ऐसी कोई नौकर के बच्चे होने वाली बात है कि ब्लैक वाला लड़का इसलिए कहना मान रहा था क्योंकि वो किसी सर्वेंट का लड़का था। नो, दे वर प्लेमेट्स, द लिटिल डार्क बॉय वॉज अ नेबर्स चाइल्ड, राइट। सो वो आगे कहता है, अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, ये मेरा सोचना ऐसा गलत है कि वो किसी नौकर का बेटा है, क्योंकि उनके ड्रेस सेम थे, उनकी क्लास सेम थी, ठीक है, क्लास इन सेंस द स्टैंडर्ड, द लिविंग स्टैंडर्ड वो भी सेम था, ठीक है। नो, दे वर प्लेमेट्स, और वो आगे अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, वो सिर्फ प्लेमेट्स थे, मतलब एक साथ खेलने वाले, जो रोज़ खेलते थे एक साथ, वो थे, ठीक है। द लिटिल डार्क बॉय वॉज अ नेबर्स चाइल्ड, और जो लिटिल डार्क बॉय था, जो काला लड़का था, वो उसके जो वो वाइट वाला लड़का था, उसके नेबर का लड़का ही था। आई वॉज श्योर ऑफ दैट, और ये उसको बहुत श्योरली पता था। देन हाउ वॉज इट दैट ही ओबेड द वाइट बॉयज़ ऑर्डर सो फेथली। फिर वो सोचता है कि पर ऐसा क्यों कि इतनी फेथफुली, मतलब वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, क्या उसकी कोई मजबूरी थी या कुछ और यहाँ पे रीज़न था कि कितनी फेथफुली, कितनी पोलाइटली वो जो जमाइकन लड़का था, जो काले कलर का लड़का था, वो कितनी फेथफुली और पोलाइटली और लाइक इन अ वेरी डिसेंट मैनर में वो उस सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। Was it that even at his early age he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call, right? तो वो आगे सोचता है, वो जो इंसान उनके पीछे खड़े होकर ये सब नोटिस कर रहा होता है, वो ये भी सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, या क्या ऐसा है कि बहुत छोटी सी एज में ही, यहाँ पे ही किसको बोला गया है, उस ब्लैक वाले बॉय को, ही सेंस्ड मीन्स न्यू, राइट, मतलब पता होना, दैट इन हिज ओन कंट्री ही वुड बी एट द वाइट मैन्स बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब है डिवोटेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है, जो आदमी है वो ये सोचता है या ये कहता है कि क्या ऐसा था कि जो ब्लैक वाला लड़का था, उसे पहले से ही पता था कि उसके खुद के कंट्री में उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, और उसे ये जो वाइट मैन है, जो वाइट मतलब जो गोरे लोग हैं, उनके टूवर्ड्स डिवोटेड रहना पड़ेगा, मतलब उनका कहना मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या उसको ये पहले से मतलब उसने अंदाज़ा लगा लिया था, या क्या उसको पहले से ये पता था कि हमारी फ्रीडम सिर्फ इतनी है कि हमें गोरे लोगों का काम सुनना पड़ेगा। Could he, in such youth, divine a difference between himself and the white boy, right? So could he, in such a youth means early age, right? And divine means aware of. तो वो आगे ये भी कहता है या ये भी सोचता है कि क्या इतनी छोटी सी एज में उस लड़के को, उस ब्लैक वाले लड़के को पता था कि उसके और वाइट बॉय के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वाइट बॉय के बीच में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसको थोड़ा हिस्ट्री से मैं यहाँ पे रिलेट करूँगा। आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, खासकर फॉरेन कंट्रीज़ में, इफ़ वी टॉक अबाउट अमेरिका एंड ऑल दैट, आज भी है और पहले बहुत ऐसा होता था कि there was a conflict, always there was a conflict means that disturbance, that there was a disturbance between the black man and the white man, right? So वही यहाँ पे भी हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या इस ब्लैक वाले लड़के को, इस काले लड़के को जो जमाइकन है, उसे पहले से पता हो गया था कि यहाँ पे मतलब हमारे ब्लैक पीपल में और वाइट पीपल में बहुत सारा डिफरेंस है, और हमें हमेशा इनके लिए एज अ स्लेव की तरह काम करना है, ठीक है। तो वो सोचता है कि क्या उस छोटे से बच्चे को पहले से ये सारी चीज़ें पता थी। डिड द लिटिल वाइट यंगस्टर, सो यंग, सच अ बेबी, रियलाइज दैट ही वुड ग्रो टू डोमिनेट द ब्लैक मैन, ठीक है। अब वो ये भी सोचता है कि जो यहाँ पे वो वाइट वाला लड़का है, मतलब जो गोरा लड़का है, ठीक है, जो कि बहुत यंग है, ठीक है, और एक हिसाब से अभी बच्चा ही है, बहुत छोटा, क्योंकि 4 साल का ही है, और 4 साल का मतलब एक बच्चा ही हुआ, ठीक है। रियलाइज मीन्स न्यू दैट ही वुड ग्रो टू डोमिनेट मीन्स टू रूल ओवर, ठीक है, किसी पे शासन करना। द ब्लैक मैन, तो वो यहाँ पे अब पहले तो उसने
ब्लैक वाले बच्चे को लेकर सोचा, अब वहाँ पे अब दूसरी ओर वो वाइट वाले बच्चे को लेकर सोच रहा है कि क्या उस वाइट वाले मतलब उस गोरे लड़के को ये पता था, जो कि एकदम छोटा बच्चा था, क्या उसे पहले से ही पता था कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको ब्लैक मैन पे मतलब काले लड़कों पे या काले लोगों पे उसको रूल करना है, मतलब उनको दबा के रखना है अपने नीचे. Was there an indefinable quality in the white man that enabled his baby smaller than younger than his playmate to make him his slave, right? So was there an indefinable means unexplained, right? जिसको explain नहीं किया जा सकता. So was there an indefinable quality in the white man that enabled his baby smaller and younger than his playmate to make him his slave, right? So slave यहाँ पे मतलब हुआ लेबर, ठीक है. enabled means allowed and indefinable means unexplained. तो वो आगे सोचता है, वो आदमी आगे अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसी कोई क्वालिटी है जो कि अनएक्सप्लेन्ड की जा सकती है या अनडिफाइनेबल है, कोई ऐसी क्वालिटी जो कि बहुत ज़्यादा है किसमें, उस वाइट वाले बॉय में, ठीक है, जो कि उसको अलाउ कर रही है, जो कि इतना छोटा है और बहुत बहुत एक बेबी के हिसाब से है, बहुत थोड़ा यंग भी है, स्मॉलर एंड यंग है, ठीक है, जो कि उसके प्लेमेट से, क्योंकि ब्लैक वाला लड़का 5 साल का था और जो ये गोरा वाला लड़का है वो 4 साल का था, तो 4 साल वाला फिर भी यंग था किससे, एज़ कम्पेयर टू दैट ब्लैक बॉय, ठीक है. तो वो सोचता है कि क्या ऐसी कोई क्वालिटी है उस वाइट वाले लड़के में जो कि अलाउ कर रही है कि जो कि अलाउ कर रही है किसको, उस वाइट वाले लड़के को, ठीक है, जो कि अपने प्लेमेट से यंग है और अभी भी बेबी है उसके सामने, छोटा बच्चा है उसके सामने, वो किस तरीके से अपने प्लेमेट का यूज़ करें एज अ लेबर मीन्स स्लेव, ठीक है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या वाइट वाले बॉय में ऐसी कोई क्वालिटी थी जिसकी वजह से जो ब्लैक वाला लड़का था वो दब रहा था, ठीक है, दब रहा था मतलब उसका कहना मान रहा था और वो प्रेशर में था, ठीक है, और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो कहना माने किसका, उस वाइट वाले लड़के का. आई कुड फाइंड नो आंसर, ठीक है. अब वो उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे थे इन दोनों बच्चों का गेम देख करके. I could not bring myself to believe such a thing, and yet, with my own eyes, I had seen a little dark boy take orders from a little white boy. ठीक है. I could not bring myself to believe. ठीक है. अब वो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा था जो भी उसने अभी तक देखा था, ठीक है, विद माई ओन आइज़, और उसने जो भी अभी तक अपने आँखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, ठीक है, और अपने सामने होते हुए देख रहा था, उस पर वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहा था. आई हैड सीन अ लिटिल डार्क बॉय, और उसने क्या देखा था कि जो वो काला लड़का है वो कितनी पोलाइटली और कितनी डिसेंटली वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, और वो ऑर्डर कौन दे रहा था, वो वाइट वाला लड़का. अ लिटिल वाइट बॉय, ऑब्वियसली ही सोशल इक्वल एंड यंगर एंड स्मॉलर, राइट. अ लिटिल बॉय ऑब्वियसली, और उस वाइट वाले लड़के का कहना मान रहा था जो कि लगभग उसी तरह सोशली इक्वल था और यंगर एंड स्मॉलर था. मतलब अगर सोसाइटी की बात करें, दोनों की स्टैंडर्ड की बात करें तो वो भी दोनों का स्टैंडर्ड भी इक्वल था, और अगर वाइट वाले की बच्चे की बात करें तो यंगर भी था, स्मॉलर भी था. किसके कंपैरिजन में, उस ब्लैक वाले लड़के के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्लैक वाला लड़का क्या था, 5 साल का था, और जो 4 साल वाला लड़का था वो वाइट वाला बॉय था. वर वी एज अ रेस रियली इन्फीरियर, राइट, वर वी एज अ रेस रियली इन्फीरियर. सो inferior means at lower standard, race means when it comes to or according to or in relation with religion और caste, ठीक है. तो अपने आप से क्वेश्चन करता है वो आदमी जो इन दोनों को देख रहा था कि क्या आज भी हम रिलीजन या कास्ट को लेके कहीं ना कहीं लोअर स्टैंडर्ड में हैं, मतलब कहीं ना कहीं आज भी ये लोगों की मेंटालिटी है कि हमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं या लोअर रिलीजन के लोग हैं उनको दबा के रखना है, उनके ऊपर रूल करना है, उनको स्लेव बना के रखना है, क्या ऐसा आज भी है? सो इन्फीरियर दैट इवन इन आवर infancy we realized our deficiency and accepted a position as a white man's servant, right.
अब वो कहता है कि सो इन्फीरियर, मतलब क्या इतना डर है, इन्फीरियर का मतलब डर भी होता है, तो क्या इतना डर है कि हम अपने इन्फेंसी मीन्स स्टार्टिंग एज, जैसे आपने बायोलॉजी में एक वर्ड सुना होगा या साइंस में एक वर्ड सुना होगा इन्फेंट। सो इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बेबी को बोलते हैं, द बर्थ एज, जो बर्थ एज में एक बच्चा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंट, राइट। सो वही वो सोच रहा है कि क्या हम इतने डर गए हैं कि अपने छोटी एज में, मतलब अपनी स्टार्टिंग एज में हमें अपनी डिफिशियंसी का पता चल जाता है, ठीक है। डिफिशियंसी मीन्स लैक, हमें अपने लैक का पता चल जाता है और हम एक पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें आगे चल के या अभी से ही जो वाइट मैन है, जो गोरे लोग हैं, उनका सर्वेंट बन के पूरी ज़िंदगी रहना है, ठीक है। तो वो ये, क्योंकि वो ये सब क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो खुद आदमी जो है, वो खुद जो पर्सन है जो इन दोनों बच्चों को देख रहा है, वो खुद एक क्या है, जमाइकन पर्सन है। द पर्सन वॉज फ्रॉम जमाइका एंड दैट इज़ वाई ही इज़ थिंकिंग, क्या सच में कुछ ऐसी डरावनी या डर वाली बात है कि हमारे स्टार्टिंग एज में ही, या क्या हम इतने डरे हुए हैं कि हमारी स्टार्टिंग एज में, मतलब शुरू से ही हम अपनी कमियों को इतना पहचान लेते हैं या इतना जान लेते हैं, ठीक है, या इस तरीके से हमारी कमियां हम पे हावी हो जाती हैं कि हमें आगे चल के या अभी से ही ये पता होता है कि हमें आगे चल के किसकी गुलामी करनी है, जो वाइट मैन है, जो गोरे लोग हैं, उनकी गुलामी करनी है। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। For a whole day I puzzled over this problem. I puzzled means I was confused. अब सारा दिन, जब से उसने देखा था तब से वो सारा दिन इस चीज़ को लेकर के परेशान था, कंफ्यूज था, कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वाई दोस टू बॉयज़ वर प्लेइंग सच अ गेम। फॉर अ होल डे माई फेथ इन माई पीपल वॉज शेकन, राइट। और पूरे दिन उसका जो फेथ है, जो उसका ट्रस्ट था उसके अपने लोगों में, क्योंकि वो जमाइका का था, तो जमाइका के खुद के लोगों में जो उसका ट्रस्ट था वो बहुत हिल रहा था, मतलब शेकन। इट वॉज नॉट, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फेथ दैट ही वॉज हैविंग इन अदर जमाइकन पीपल. When I passed by that afternoon, the little boys were not there. That evening, I thought deeply on the subject. और जब वो आफ्टरनून, मतलब दोपहर में जब वो लौटा, वापस हुआ, तो वो दोनों बच्चे वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। और वो सारी शाम, लगभग उस दिन की सारी शाम उसने ये इस सब्जेक्ट पे सोचते हुए बिता दिया, बहुत ज़्यादा गौर किया, सोचा उसने. The next morning, the boys were there again, and a man was standing at the gate watching them. ठीक है. The next morning, that boys were there again. और फिर दूसरी सुबह जब वो फिर उठता है, फिर घर से निकलता है और वॉक के लिए, तो उसने देखा कि वो लड़के फिर से वहाँ पे उस गार्डन एरिया में थे. एंड अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट वॉचिंग देम. और एक आदमी, उसने देखा एक आदमी भी गेट पे खड़ा था जो उन दोनों को देख रहा था. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant do. और फिर अगेन, फिर से पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी वो आदमी जो कि पिछले दिन उन दोनों को खेलते हुए या ऑर्डर फॉलो करते हुए उस लिटिल जमाइकन बॉय को देखा था, वो फिर से वहाँ पे आके रुक जाता है और देखने लगता है कि आज क्या वो वाइट बॉय, मतलब आज वो लड़का क्या करवाने के लिए अपने जो ब्लैक कैंडिडेट था, जो ब्लैक बॉय था, जमाइकन बॉय था, उससे क्या करवाने के लिए, या आज उससे क्या करवा रहा है, ठीक है। ये देखने के लिए वो रुक गया, क्योंकि पहले दिन उसको कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिया था उस ब्लैक लड़के को, उस वाइट वाले लड़के ने. तो इसी वजह से वो आदमी जो आज फिर से वॉक पे निकला है, वो वहाँ पे फिर से रुक के देखने लगता है कि आज मैं देखता हूँ आज ये जो वाइट वाला लड़का है वो क्या क्या कराएगा इस ब्लैक वाले लड़के से. To my utter astonishment means great surprise. He was very surprised. What he saw at that time on the second particular day, he was very surprised. मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गया, मतलब बहुत अचंभित हो गया. The little dark boy was striding imperiously up and down the lawn while the white youngster walked abjectly behind him. Right. So the little dark boy, ठीक है, वो स्ट्राइडिंग मीन्स मार्चिंग, ठीक है. मतलब अब दूसरे दिन उसने कुछ अलग देखा. कुछ अलग क्या देखा कि जो लिटिल बॉय है, डार्क बॉय, जो काला लड़का था, ठीक है, वो स्ट्राइडिंग मीन्स मार्चिंग. जैसे हम मार्च करते हैं, चलते हैं,
खासकर आपने मार्चिंग देखी होगी हमारे स्कूल में, स्कूल के टाइम में जब परेड होता है तो वही वो मार्च कर रहा था, मतलब परेड कर रहा था, ठीक है। इम्पीरियसली अप एंड डाउन, ठीक है, वो आगे पीछे मार्चिंग कर रहा था, ठीक है, मतलब एक चल रहा था, फिर चल के आ रहा था, फिर चल रहा था, फिर चल के आ रहा था, दैट मीन्स ही वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो, ठीक है। इम्पीरियसली अप एंड डाउन, इम्पीरियसली मीन्स एरोगेंटली, एरोगेंटली वो चल रहा था, मतलब अप एंड डाउन कर रहा था, मतलब टू एंड फ्रो वॉकिंग कर रहा था डाउन द लॉन, वाइल द वाइट यंगस्टर वॉकड एब्जेक्टली बिहाइंड हिम। और जो यंगस्टर था, जो दूसरा वाइट यंगस्टर था, मतलब जो गोरा वाला लड़का था, वो वॉकड एब्जेक्टली बिहाइंड हिम, एब्जेक्टली मीन्स विदाउट रेस्पेक्ट, और वो भी जो वाइट वाला लड़का था वो भी उसी तरीके से उसके पीछे पीछे चल रहा था। एब्जेक्टली मीन्स विदाउट रेस्पेक्ट, मतलब जैसे जैसे वो ब्लैक वाला लड़का चल रहा था तो वैसे वैसे ही ये वाइट वाला लड़का भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है। गेट मी अ बनाना, द लिटिल वाइट बॉय रैन इन टू द हाउस एंड रीअपियर्ड शॉर्टली विद द बनाना। अब उस वाइट वाले जो यहाँ पे काले वाले लड़के ने उससे बोला, क्या बोला, कि जाओ मेरे लिए एक केला लेके आओ। द लिटिल वाइट बॉय रैन इन टू द हाउस। अब जो वो छोटा लड़का था, ठीक है, जो गोरा लड़का था, वो तुरंत घर में जाता है और बनाना के साथ तुरंत आ जाता है। रीअपीयर्ड मीन्स कम अगेन, ठीक है, या केम अगेन। और फिर वो दौड़ते दौड़ते घर में जाता है और घर से एक बनाना लेके तुरंत वहाँ पे हाजिर हो जाता है। पील इट ऑफ फॉर मी, पील इट ऑफ मीन्स रिमूव द दैट स्किन ऑफ द बनाना। अब वो बोलता है कि इसका छिलका जो है वो रिमूव करो। द लिटिल वाइट बॉय स्किन्ड द बनाना एंड हैंडेड इट टू हिज डार्क मास्टर। अब जो ब्लैक वाला लड़का था वो उससे बोलता है कि जो ब्लैक वाला लड़का था वो वाइट वाले बॉय से बोलता है कि पहले तो बोलता है कि जाके एक बनाना लेके आओ, फिर वो बनाना लेके आता है, फिर उससे बोलता है कि इसके छिलके को तुम हटा दो, फिर वो छिलका भी हटा देता है, ठीक है। द लिटिल वाइट बॉय स्किन द बनाना एंड हैंडेड टू हिज डार्क मास्टर, राइट। अब यहाँ पे डार्क मास्टर कौन है, वो ब्लैक वाला लड़का। तो वैसे ही जैसे वो ब्लैक वाला लड़का उसको एक एक बातें कह रहा था कि पहले बनाना ले आने के लिए कहा, फिर उसको कहा कि उस वाइट वाले लड़के से बोला कि इसका छिलका हटाओ, तो उसने छिलके को हटा दिया, और छिलके को हटाने के बाद जो वो केला था, जो बनाना था, उसको हैंड ओवर किसको कर देता है, उस काले वाले लड़के को, राइट। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। So homework students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book too. Also read this story a little further, right? So what you have to do is you have to write down the word meanings in your classwork copy, right? And in your book you have to just write down the meanings that in the same manner that like I have written in my book, and you have to read the story a little further, right? So students, in our next class we will continue with the same story, right? We will be continuing with the same story. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.